الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعصمني من شر نفسي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة وادخلنا في الجنة بالقرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. آیت نمبر 12 ہو گئی تھی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ ہو گیا تھا، یہ منافقین کے متعلق ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، چلو یہاں سے شروع کریں گے 11 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جمع کا صیغہ ہے. فسد یفسد باب افعال سے، فسد یفسد افساد. اب یہاں تفسدو دوسرا صیغہ ہے مضارع کا، اور وہ الف آیا ہے. کیوں آیا؟ تفسدون آنا تھا. یہ کیوں آیا؟ نون کیوں ڈراپ ہوا؟ لا کی وجہ سے. لا ڈراپ کر دیا. نون یہ رابی جسے کہتے ہیں. نون 3 قسم کے ہیں. نہیں، نون ثقیلہ ہے، نون نسواں ہے، نون اعرابی ہے. نون اعرابی بھی افیکٹ ہوتا ہے اور نون نسواں بھی افیکٹ ہو جاتا ہے، آئی مین نون ثقیلہ. لیکن نون نسواں کبھی بھی اس کا فعل، اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا. جیسا عورت کی ضد ہے مشہور، ویسی ہی ہے نون نسواں بھی ہے. اس کو کوئی عمل اس پر کارگر نہیں ہوتا. تو یہاں نون اعرابی تھا، وہ ڈراپ ہوا اور وہ الف جمع کا صیغہ آیا. یہ کس سے کہا جاتا ہے؟ یہاں سے منافقین کی بات ہو رہی ہے. 10 رکوع یہاں سے منافقین کی ہی بات ہو رہی ہے. انہی کے متعلق ہے. یہاں ان کا کیا معاملہ رہا، ان کا رویہ کیسا رہا، کیسا یہ دو موے کاما کرتی، کیسا یہ کوہ کے جیسا کاما کرتی. دو روش، ڈبل پرسنالٹی ان کی، ڈبل کیریکٹر. جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتی تو ان کا الگ رویہ رہتا ہے، بڑے اچھے مسلمان بنتے. وہ جو ابئی عبداللہ ابن ابئی بھی ویسا ہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو لوگوں کو بلاتا، جماتا، کھڑا ہو جاتا. لوگوں سنو سنو، غور سے سنو، کیا کہہ رہے محمد، غور سے سنو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، یہ بہت اچھی باتیں ہیں. یہ آ کر یہاں ایسی منافقت کرتا. پھر پیچھے کیا کرتا؟ یہ آستین کا سام تھا. بہت زیادہ تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سے ہوئی، اور اس کے پیروکار بھی تھے. اس کی بہت بڑی جمعیت تھی. 300 لوگوں کو اس نے جمعیت کو لے کر چلا گیا نا جنگ احد میں. 300 آدمی لوگوں کو. وہ بھی کب؟ قریب تھے، جب قریب تھے. کیسے مورل ڈاؤن ہونا، کیا حالت ہونا دوسروں کی. جنگ میں جانے والوں کو مارنے کا حکم ہے، لیکن تب حالت اسلام کی ویسی نہیں تھی. جنگ میں پیچھے قدم ہٹانے والوں کو کیا حکم تھا؟ قتل، واجب القتل تھے وہ لوگ. لیکن ان کو ایسا نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اسلامی قوت اتنی بڑی ہوئی نہیں تھی تب. ابھی کمزور پودا تھا اسلام کا، تناور درخت نہیں ہوا تھا. کچھ بھی نہیں کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہ گئے، وہ لے کر چلا گیا 300 آدمیوں کو. یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں سے. وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے. قیل مجہول ہے. قال یقول کہنا، اس نے کہا قال. یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا، مضارع کا. یہ مجہول کا صیغہ. کیا بولتے ہیں انگلش میں مجہول کو؟ آپ میوٹ نہیں کر سک رہی کیا؟ انمیوٹ نہیں کر سک رہی کیا؟ مجہول کو پیسیو وائس بولتے ہیں. پیسیو وائس سیڈ بائی ہم، ہی سیڈ اٹ بولتے ہیں ایکٹیو وائس میں. اٹس ٹولڈ بائی ہم اور اٹ از سیڈ بائی ہم. ٹولڈ بائی ہم بولتے ہیں نا. پیسیو بائی جو لگ جاتا ہے. کہا گیا، ان سے کہا گیا. کیا کہا گیا؟ لہم ان کے لیے، ان سے. لا تفسدو
फसाद ना करो। कहाँ? फिल अर्दी, जमीन में फसाद ना मचाओ। ये फसाद के मानी किस मतलब में आ रही? ये जो कुफ्र कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात की जो इनहिराफ कर रहे हैं और उसको उसके अगेंस्ट में जो जा रहे हैं, उल्टा प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, ये फसाद है। ये फसाद तुम मत करो, फसादी मत बनो, जमीन में फसाद मत मचाओ। तो ये क्या कह रहे हैं जवाब? कालू, उन्होंने कहा। माजी का सीगा है ना, ये माजी का सीगा है। काला, उसने कहा। काला जो अलीफ के साथ आ जाता है, लाम अलीफ, काफ अलीफ लाम अलीफ जबर, काला, उन दोनों ने कहा। तस्निया का सीगा है अरबी में, दूसरे जबानों में नहीं है। वो बोल देती है, वो दोनों बोल देती, एक पर्टिकुलर सीगा नहीं है जैसा अरबी में है। ये बड़ी जबान, बड़ी कीमती जबान है, बड़ी मालदार जबान है। खालू उसका जमा का सीगा, खालू वो अलीफ के साथ जो आता है। तो वो सब क्या कहने लगे जब इनसे कहा गया कि फसाद मत बचाओ? तो उन्होंने कहा, इन्नमा, इन्ना यकीनन, मा हम, इन्ना यकीनन, इन्नमा यकीनन, नहनु हम, मुस्लिहून, हम इस्लाह करने वाले हैं भाई। हम तो फसाद नहीं मचा रही, हम फसाद नहीं मचा रही। अब उल्टा मतलब इनका क्या? आप लोग फसाद मचा रहे हो। क्या फसाद मचा रहे हो? ये घर में किलकिल मच गई है। बाप से बेटा जुदा हो गया, माँ से बच्चे जुदा हो गए, भाई से भाई जुदा हो गया। क्यों जुदा हो गया? कुफ्र से इस्लाम में आ गया, एक इस्लाम में आ गया, दूसरे कुफ्र में रह गए, तो इन दोनों में दुश्मनी हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे के सामने बदर में क्या हुआ था? बाप आ गए थे, तो वो कहता है कि देखो अब्बा जान, मैंने कहा, मैंने तलवार नहीं चलाई, आप मेरे सामने आ गए थे। तब क्या था? बाप इस्लाम में आ गए थे, बेटा अभी कुफ्र शिर्क पर ही था। तो जवाब क्या देते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक? अल्लाह की कसम, अगर तू मेरी तलवार के ज़हन में आ जाता, अपोजिट आ जाता, तो मैं जरूर चला देता, क्योंकि मैं हक पर हूँ, तू हक पर नहीं था, उस वास्ते तेरी हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मामला हो गया था यहाँ पर। हर घर में किलकिल मच गई थी, घर घर में फूट पड़ गई थी। तो ये क्या बोल रही? ये लोग क्या बोल रही? इनकी दानिश में ये इस्लाह करने वाले हैं, इनकी समझबूझ में, अकॉर्डिंग टू देम, उनके शऊर में, उनकी अकल के मुताबिक, उनकी दानिश के मुताबिक क्या? ओ नो, वी आर डूइंग गुड। हमें क्या कर रहे हैं? लोगों में फसाद फैलाने से हमें रोक रही, इस्लाह करने वाले हैं, मुस्ले हैं हम लोग। इस्लाह का इस्मुल फाइल होता है मुस्ले, हम मुस्ले हैं, हम इस्लाह करने वाले हैं। यानी ये जो आप फसाद फैला रहे हो, घर घर में फूट पड़ गई है, ये करने की जरूरत क्या है? ये मदनी सूरत है, ये यहाँ ये मुनाफिकीन का एक पौधा झाड़ उग गया है बहुत बड़ा, इन लोगों की ये बातें हैं। वहां तो मक्के में थे, कौन थे? काफिर थे, मुशरिक थे, डायरेक्ट बात करते थे। इनका ऐसा ढका छुपा कोई रविश इनकी नहीं थी। यहाँ मुनाफिकों की एक अलग ही कौम पैदा हो गई है, एक अलग ही ग्रुप पैदा हो गया है, जो बहुत ही खतरनाक है इस्लाम के लिए, बहुत ही खतरनाक। क्योंकि वो लिबादा ओढ़े हुए हैं, एक मसनूई, कहते तो ही हम मुसलमान हैं, लेकिन है पक्के दुश्मन, खतरनाक दुश्मन है ये। लोगों को वर्क डालने वाले, पीछे जाकर कॉन्स्पिरेसीज करने वाले, पीछे जाकर इसके अगेंस्ट प्लानिंग करने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमस्कर उड़ाने वाले, ये सारे काम डिमोरल करने के लिए मुसलमानों को और ये मिशन को नाकाम करने की ये पीछे से कोशिश कर रही। हुजूर को मालूम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बखूबी मालूम ये क्या कर रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। इस टाइप का सिचुएशन है यहाँ पर, बड़ा हिस्सास सिचुएशन, वेरी सेंसिटिव। कुछ भी करो तो उसे खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके पास भी बहुत से, उसके लोग भी, उसकी मैन पावर उसका बहुत ज्यादा है। नफरी जिसे बोलते हैं ना, मैन पावर उसके पास भी ज्यादा है। अगेंस्ट हो जा सकते हैं, क्या भी कर सकते हैं ये लोग। अभी इस्लाम उतनी कुव्वत में नहीं आया था, मुकाम, स्टेबल पोजीशन नहीं था इस्लाम का। तो उस वक्त ये क्या बोल रहे हैं? खीला, कहा जाता है, जब उनसे कहा जाता है ला तुफसिदू, ना फैलाओ फसाद जमीन में, तो ये क्या कह रही? वो कहते हैं कि इन्नमा, सिर्फ, यानी हम सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। इन्नमा बोले तो सिर्फ, कंपोजिट वर्ड है वो। इन्ना, इन्ना ही है बेशक। ये माँ को क्या बोलती? माँ काफा बोलती, याद रखिएगा। माँ नाफिया भी है, माँ इस्तेफामिया भी है,
اور माँ मौसूला भी है। और इसे क्या बोलती है? इन्नमा में जो माँ आता है याद रखिएगा, इसे माए काफा बोलते हैं। इसका मतलब क्या? काफी हो जाना, सिर्फ इतना ही, हम इतना ही कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? मुस्लिहून, इस्लाह कर रहे हैं, हम नहीं फसाद फैला रहे हैं, हम इस्लाह कर रहे हैं। अब अल्लाह का ये क्या है? अंदिया, अल्लाह यकीन, आगाह हो जाओ, बखूबी जान लो, इट्स वेरी क्लियर, बखूबी जान लो बात क्या है, हकीकत क्या है। अल्लाह, खबरदार रहो, इन्नहुम, यकीनन वो, इन्ना हम, बेशक वो, हुमुल मुफ्सिदूना, वही हैं, इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदूना। 2 बार जमीर आ गई, ये मिली हुई जमीर, ये अटैच प्रोनाउंस 2 बार आ गई, तो इन पे जोर दिया जा रहा है, सिर्फ यही है मुफ्सिदून, फसाद फैलाने वाले यही हैं। मुफ्सिद इस्मुल फाइल है, मुफ्सिदून वो नून आ गया, जमा सालिम मुजक्कर का सीगा है। वलाकिन ला यशुरून, वो अतफ है, लाकिन ये अरबी का एक ये है तरकीब, हम लेकिन जरा अलग इसमें यूज करते हैं। अब यहाँ कैसा यूज हो रहा है? वलाकिन ला यशुरून, लेकिन इनको पता भी नहीं है, शऊर भी नहीं है इनको, इनके कॉन्शियस में ये बात है ही नहीं कि ये फसाद फैला रही, ये समझ रही इस्लाह कर रही, और लोगों से भी यही कह रही। जब कहा जाता है इनसे फसाद मत फैलाओ, तो ये कहते हैं कि हम नहीं फसाद फैला रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम तो इस्लाह कर रहे हैं। वलाकिल्ला यशुरून, ये तो फसादी है, फसाद फैला रही है, लेकिन इन्हें पता नहीं चल रहा है, इनको पता भी नहीं चल रहा है कि ये फसाद बर्पा कर रहे हैं। वो इज़ा क़ीला लकुम, अब दूसरी बात से क्या कही जा रही है? ये सब मुनाफिकों के बारे में पूरे 10 रुकू आ रहे। और जब इज़ा का बात है, ज़र्फ है ये, और जब क़ीला कहा जाता है, अगेन मजहूल है, लहुम उनसे कहा जाता है, आमिनू, ये आमिनू कौन सा सीगा है? फेले अमर है, जमा का सीगा है। आमिनू, ईमान ले आओ, भाई तुम ईमान लाओ, जैसा दूसरे लोग ईमान ला रही, सब ईमान ला रही नहीं, जो ईमान ला रही, मदीने की सूरत है ये, मदनी सूरत है, तब तक तो बहुत से ईमान ला लिए, एक छोटी सी रियासत भी कायम हो गई। देखो लोग जो जोक दर जोक धड़ाधड़ आ रही ना इस्लाम में, तुम भी उसी तरह आ जाओ इस्लाम में। कमा आमनन नासु, जैसे के लोग ईमान ला रहे। जब कहा जाता है उनसे आमीनू, तुम ईमान ले आओ, तुम ईमान लाओ, ईमान पर आ जाओ, कमा, का बोले तो मिसल, जैसे, लाइक, आमना, ईमान लाए, अन्नास, लोग, कॉमन लोग, पीपल, जनरल पीपल जो ईमान ला रहे हैं, उनकी तरह तुम भी आ जाओ इस्लाम के पर्व में, तुम भी आ जाओ, तुम भी ईमान ले आओ। तो इनका जवाब क्या है? कमा आमन अन्नासु, जैसे लोग ईमान ला रहे तुम भी ईमान लाओ। तो ये कह रहे हैं, खालू, इन लोगों ने कहा, अनुमिनु, आ क्वेश्चन है ये, इस्तेफामिया, ये आ क्या है? ये हमजा, हमजा और अलीफ में फर्क आपको मालूम है। अलीफ बोले तो कि वो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अलीफ होता है, जेर जबर पेश जज्म कुछ नहीं होता। जेर जबर पेश जज्म कुछ भी आ गया उस पर तो उसको हमजा कहते हैं, अलिफ नहीं कहते। इट इज नो मोर अलिफ, इट इज कॉल्ड हमजा। जब कोई भी एराब आ जाता है, इवन जज्म आ गया तो भी। अब यहाँ क्या आया? आ, जबर आया। क्वेश्चन क्या? नो मिनो, हम ईमान लाए। नो मिनो चौथा सीगा है मुजारे का, हम ईमान लाए। कमा आमन सुफहाउ, कमा फिर अगेन लाइक, आमन सुफहाउ जैसा वो लोग ईमान लाए, वो लोग तो बेवकूफ हैं। ये किसकी जमा है? सुफहा, सुफहा सफीह की जमा है ये। सफीह बोले तो बेवकूफ, अकल नहीं रखने वाला, अकल का कच्चा, नहीं समझने वाला। ये तो ना समझ गई हैं, ये क्या हम ईमान ले आए जैसा कि वो मुसलमान हो गए, वो बेवकूफ लोग मुसलमान हो गए, ईमान ले आए ना, क्या उन बेवकूफों की तरह हम ईमान ले आए? उनको घर बार की फिक्र नहीं, बच्चों की फिक्र नहीं, बाल बच्चों की फिक्र नहीं, अपने मफादात की फिक्र नहीं, कारोबार की फिक्र नहीं।
معاملات کی فکر نہیں, لوگوں کے تعلقات کی فکر نہیں, سب سے کٹ گئے, چلے گئے مدینہ, مکہ چھوڑ کر مدینے کو چلے گئے, بال بچے ادھر رہ گئے. ابو سلمہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے, ابو سلمہ وہاں چلے گئے, ام سلمہ یہاں رہ گئی, روتی تھی, ہمیشہ روتی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, چونکہ ابو سلمہ چلے گئے تھے, ابو سلمہ باپ کا نام ہے, ان کا نام کچھ اور ہے, بہت جلیل القدر صحابی جو جنگ احد میں شہید ہو گئے. جنگ احد میں کاری ضرب لگی انہیں, اس کے بعد وہ جانبر نہیں ہو سکے. بچوں کی کنیت سے ان کو سمجھا جاتا ہے. ان کے بچے کا نام تھا سلمہ, تو یہ باپ بنے ابو سلمہ, ماں بنی ام سلمہ. یہ چلے گئے تھے, ان کی بیوی یہاں پر رہ گئی تھی. اب یہ چونکہ لاچار بے بس ہو گئی, شوہر بھی چلے گئے, تو ان کے سسرال والوں نے یہ بچہ بھی چھین لیا ان سے, یہ کہہ کر کے یہ ہمارا خون ہے, ہمیں دے دو, تم تو وہاں چلی جاؤ گی آج نہ کل. جانے بھی نہیں دیتے تھے, اس کو جانے بھی نہیں دیتے تھے, اور بچہ بھی ان سے چھین لیا. تو ان کے ایسے چند لوگوں کے افراد کے ایگزامپل لے کر یہ کہتے کہ دیکھو یہ لوگ کیسے بیوقوف ہیں, ان کو نہ بال بچوں کی فکر ہے, نہ ان کی کچھ تجارت کی فکر ہے, نہ کام دھندے کی فکر ہے, نہ دوسروں کے معاملات کی فکر ہے, بچوں کی بھی فکر نہیں. کیا ہو رہا ہے یہاں, سرداران قریش ان کے بال بچوں کے ساتھ تنے تنہا جو یہاں رہ گئی, ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں, کیا زور ظلم زبردستی ان کے ساتھ ہو رہے, کچھ بھی فکر نہیں ہے ان لوگوں کو. یہ تو سفیہ ہے, بیوقوف ہے. ان کے جیسا ہم ایمان لائے, تم ہم سے ایمان کی طلب کر رہے ہو, طلب کا مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح. اللہ جواب دے رہا ہے, الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ لوگ ہی ہیں جو بے وقوف ہیں, وہ بے وقوف نہیں جو چھوڑ کر گئے, ہجرت کر گئے. ہاں یہاں کچھ ٹیمپوریلی تکلیف ہو رہی ہے, ان کے بال بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن یہ سب کہاں جمع ہو رہا ہے, یہ ہے آخرت کے لیے ان کی پونجی. بہت اچھا عیش میں رہیں گے, یہ چند روزہ زندگی کی تکلیف ہے, بعد میں چلے جائیں گے نا, فتح مکہ ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کیا ہوا, فتح مکہ میں کیا ہو گیا, ایک دم کایا ہی پلٹ گئی, نقشہ ہی بدل گیا, سب ظاہر آ گئے, اسلام کے ظاہر آ گئے, حکم دیا گیا. دیکھو چند روزوں کی, چند دنوں کی مہلت دی جا رہی ہے. 3 چیزیں ہیں, یا تو تم یہی رہنا ہے تو ایمان لانا ہے, یا جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ, یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ 3 ہی ہیں آپشنس ان کے پاس. سارے پروی میں آ گئے. وہ اکرما جانے والے تھا, ابو جہل کا بیٹا, جو جانے والے تھے گئے سمندر میں, ایک جہاز میں چڑھے, سمندر میں گر گئے, طوفان میں گر گئے. تو سب نے پکارا, اللہ کو ہی پکارا. تو اسے ایک دم خیال آیا, ایک وقت خیال آیا کہ یہی تو پکار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں. وہ یہی تو کہہ رہی کہ اللہ کو پکارو, کسی اور کو مت پکارو, شرک نہ کرو, کفر نہ کرو. یہی تو تعلیمات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم کتنے نرے بیوقوف ہیں, پھر واپس آئے, پھر اسلام میں داخل ہو گئے, اسلام قبول کر. اس کے بعد کتنی خدمت ہوئی ان کی. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نے بہت خدمت انجام دی ہے اسلام کی. کہا کرتے تھے وہ, میں نے بہت تکلیف دی ہے محمد کو, اب میں کتنا بھی کروں اس تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتا میں, یعنی I can't compensate that, اسے بھرپائی نہیں کر سکتا اس کی, بہت تکلیف دی ہے میں نے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ بیوقوف لوگ ہیں نا, ان کے جیسا ہم ایمان لے آئے کیا. ہمیں پرواہ ہے بھائی, گھر کی پرواہ ہے, تجارت کی پرواہ ہے, کام دھندے کی فکر ہے, ہمیں ہمارے مقام کی فکر ہے. یہ سب چھوڑ چھاڑ کر ہم ایک طرف کے ہو جائیں, دنیا سے کنارہ کشی کر لیں. جیسا یہ گھر بار سے رشتہ ٹوٹ گیا, لوگوں سے رشتہ ٹوٹ گیا, ایسا کام ہم نہیں کرنے والے, ایسے بیوقوف ہم نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے بھائی تم ہی ہو بیوقوف, یہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. یہ لوگ جو سودا آگے آ رہا ہے, یہ لوگ جو سودا کر رہے ہیں, گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. تم لوگ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں, تم بیوقوف ہو, نرے بیوقوف ہو. وہ نہیں, وہ سودا کر رہے ہیں, ہدایت دے رہے ہیں, گمراہی چھوڑ کر ہدایت پر آ رہے ہیں. جنت کے حصول کی طلب کر رہے ہیں, یہ جنت حاصل ہوگی انہیں. تم لوگ ہو جو جہنم میں جھونکے جا رہے ہو, تم دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہو, مفادات کے پیچھے. تم ہو نرے بے وقوف. الا انہم هم السفہاء, اللہ خبردار ہو جاؤ, انہم یہی لوگ ہیں, هم السفہاء ولکن لا یعلمون, انہیں پتا بھی نہیں چل رہا. یعلمو, علم یعلمو سے سمیع یسمع باب جاننے والے, علم رکھنے والے, سمجھ بوجھ رکھنے والے. حقیقت میں تو یہ لوگ بے وقوف ہیں, مگر یہ اپنی بے وقوفی کو جانتے بھی نہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بے وقوف کام کر رہے ہیں, یہ بے وقوفوں سا کام کر رہے ہیں, اپنا گھاٹا کر رہے ہیں. یہ نہیں جانتے, انہیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا, ایسے بے وقوف ہیں یہ لوگ.
वो लोग बेवकूफ नहीं, जो ईमान लाए वो बहुत अक्ल का काम कर रहे हैं, बहुत दूर अंदेशी का काम कर रहे हैं, आखिरत का सौदा कर रही है, आखिरत अपनी संवार रहे हैं। ये बहुत अक्लमंदी का काम है। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम। यहाँ क्या आया? लाम अलिफ आया। लाम अलिफ आया तो क्या करना? मिलाना। लाम अलिफ अगर इबारत के अंदर आया, आयत खत्म होने से वो गोल दायरा जो आता है ना, सर्कल, उससे पहले अगर लाम अलीफ आ रहा है तो मिलाकर पढ़ना। इसका मतलब क्या होता है कि ला मतलब नहीं, नहीं ठहरना है, यहाँ नहीं ठहरना है, क्योंकि बात खत्म नहीं हुई है, बात अभी जारी है। जैसा सेमीकोलन कोलन ऐसा देती ना, कामा देती ना, बात अभी जारी है, खत्म नहीं हुई। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। इस तरीके से पूरा मिलाकर पढ़ना है। अगर पढ़ने में कोई आपको सांस रुक गई, पूरा कंटिन्यूअस नहीं पढ़ सकते, तो क्या करना? पीछे के एक दो हुरूफ से फिर ऐड कर लेना, चूंकि जारी है, ये मफहूम जारी है, ये बात जो चल रही है वो जारी है, खत्म नहीं हो रही है। अगर हम इधर से ही शुरू करें तो क्या होता है? मफहूम जो थोड़ा कट जाता है। वो ईजा और जब, लकू, लका यलकी मिलना, मुलाकात, उर्दू में जो हम मुलाकात कहते ना, रूट वर्ड यही है, लाम खा या, लका यलकी। लका माजी है, यलकी क्या है? मुजारे है। लखू जब वो मिलते हैं, जब वो मिलते हैं, अल्लज़ीना आमनू उन लोगों से जो ईमान लाए। अल्लज़ीना इसमें मौसूला जमा मुज़क्कर सालिम, या नून और वो नून से एंड होता है तो वो जमा सालिम होती है। या नून नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल उलमा, या नून नहीं आ रहा है, आलिमून ऐसा नहीं आ रहा है ना, वो नून नहीं आ रहा है ना, तो वो टूटी हुई जमा, उसे क्या बोलते हैं? मुकस्सर बोलते हैं। जमा मुकस्सर। कसरा, कसरा बोले तो टूटा हुआ, जेर को कसरा इसीलिए कहा जाता है कि नीचे एक लकीर है ना, तो टूटा हुआ लगता है ना, वो इस तरीके से मुकस्सर, जमा मुकस्सर। अल्लज़ीना इसमें मौसूला जमा सालिम, आमनु, आमनु ये क्या हुआ? दरमियानी मदाई, यानी जो ईमान लाए, उनसे अगर ये लोग मुनाफिकीन मिलते हैं तो ये क्या कहते हैं? जो लोग ईमान लाए मुसलमानों से, मुसलमानों के साथ अगर ये मुनाफिकीन आ गए तो क्या कहते हैं ये लोग? आमन्ना, हम ईमान लाए, हम ईमान पर है। वो ईजा खलो, और जब वो खलवत में, खलवत, खलो, खलवत उर्दू भी यही वर्ड है। खलवत का अपोजिट क्या है? जलवत, जलो, जलो बोले तो नुमाया होना, महफिल में जाना, महफिल, खलवत, जलवत, दो अपोजिट वर्ड्स। अब यहाँ क्या है? खलो, जब ये खलवत में बोले तो प्राइवेसी में, प्राइवेसी में, अकेले अकेले में, तन्हा, जब इनके इला शयातीनिहिम, इनके शयातीन की तरफ आते हैं। शयातीन किसकी तरफ वो ये रुख है, किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? उलमा, यहूद के उलमा। और वो जो था अब्दुल्ला इब्ने उबई, जो भी मुनाफिकीन है, ये उलमा के पास जाती तो इन्हों क्या करती? क्या बोल रहे इन्हों? अपने शयातीन से जब ये खिलवत में अकेले में मिलते, कालू वो कहते हैं, इन्ना माअकुम, हम, इन्ना ये दो का मुरक्कब इजाफी है, इन्ना और ना का। इन्ना यकीनन, ना हम, भाई यकीनन हम तुम्हारे साथ ही हैं, माकुम हम तुम्हारे साथ हैं। उन लोगों से जो मजाक कर रहे हैं हम। अब ये फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला इब्ने उबई किसी को देख लेता, मुसलमानों के साथ देख लेता, अरे क्या तुम उनके साथ हो गए क्या? पूरे उन्हीं में चले गए तुम, उन्हीं के फ्रेंडशिप में हो गए हो तुम? तो ये लोग क्या करते हैं? बताते हैं नहीं नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ ही हैं, हम उनसे मजाक कर रहे, चुप ऐसे ही, हम तो तुम्हारे वफादार हैं, तुम्हारे साथ हैं। इन्ना माकुम हम तुम्हारे साथ हैं,
इन्नमा महज नाहनु मुस्तहजिऊन, हम मजाक कर रहे, हम सिर्फ मजाक कर रहे, वे जस्ट जोकिंग, जोवियल, उनके साथ चुपके ऐसे ही हैं हम, उनके साथ तमस्खुर कर रही, मजाक कर रही, उन्हें धोखा दे रही, उन्हें बेवकूफ बना रही। हम भी ईमान में हैं, तुम्हारे साथ हैं बोलकर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका ये एक जो राज है, ये लोग बहुत अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, आप भी समझते हैं, यहूद खुद को बहुत चालाक समझते हैं, ये आर्यन नस्ल है ये। अब ये हमें जान लेना चाहिए कि ये आर्यन नस्ल है, आर्याई अक़वाम है ये। यहूद भी, अब यहाँ के जो बम्मन, ये जो आला तबके के खुद को कहलाते ना, ये भी आर्याई नस्ल है ये। ये जो सऊदी वाले हैं इधर के जो है, ये सेमेटिक है ये। सेमेटिक में और आर्यन नस्ल में बेसिक उनकी सिरिश्त में जो डिफरेंस है वो क्या है? ये आर्याई नस्ल कैसे हैं? बाल की खाल निकालने वाले, खोद कुरेद करने वाले, हर चीज की तह तक जाने वाले चालबाज कौम ये। एक वर्ड में कहे तो ये चालबाज कौम, धोखेबाज कौम, और सबको धोखा देने वाली, सबको बेवकूफ समझने वाले, खुद को बड़े अक्लमंद समझने वाले। कर भी रहे हैं, अक्लमंदी का काम कर भी रहे हैं। हम लोग ही बेवकूफ हैं जो इस्लाम के सारे तालीमात को तर्क करके उन्हीं के रविश पर चल रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम चलोगे उनकी रविश पर, यहूद की रविश पर चलोगे। वो एक है अब जो हदीस है कि अगर वो कोह की बिल में गया तो तुम भी जाओगे, कोई माँ के साथ बदकारी किया उनमें से तो तुम में भी कोई ऐसा उठेगा। ये हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहतन एक हदीस नबवी है। तो ये ऐसा समझ रही कि खुद को होती है। अब सेमेटिक रेस का लीजिए, सेमेटिक रेस जो अब ये दूसरे अक़वाम जो वहां के हैं, हिजाज के हैं, उधर हबशा के हैं, या इधर की कौम जो है उसको जो सेमेटिक रेस कहते हैं, वो क्या है? खोद कुरेद करने वाले नहीं। ये लोग फलसफियाना बातें, फलसफा में जाने वाले, ये क्यों ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये नहीं करने वाले। ये एक हदीस से साबित होता है। क्या हदीस है वो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि फितना बर्पा होगा, एक बहुत बड़ा फितना। अब यही है, यही जमाना है, फितना बर्पा होगा। तो हजरत अली ने क्या पूछा? ये नहीं पूछा कि कैसा होगा, फितना कब आएगा, किस वक्त आएगा, कैसा आएगा, किस किस्म का होगा, क्या होगा उसका इम्पैक्ट, ये नहीं पूछा। क्या पूछा उन्होंने? बला मखरजा या रसूल अल्लाह। क्या पूछा? यहाँ से निकलने का, मखरज बोले तो यहाँ से निकलने का रास्ता, यानी सोल्यूशन क्या है इसका, हाउ टू कम आउट ऑफ इट, हाउ टू ओवरकम दैट फितना। सोल्यूशन पूछ रही, बाल की खाल नहीं उतर रही, खोद कुरीद में नहीं पड़ गए, ये कैसा वो कैसा। ये अगर ऐसा होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुश्किल पेश आती। ये चूंकि ज्यादा सवाल नहीं करते थे, सवाल ज्यादा नहीं करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो खामोश बैठे रहते थे। वो एक हदीस में एक ईमान के मुताल्लिक जो आई है ना, हदीस नबवी, उसे जिब्राइल की हदीस भी कहते हैं। वो आए और सवालात करने लगे, ईमान क्या है, एहसान क्या है, ये सब पूछने लगे। किसी को मालूम नहीं हुआ हजरत जिब्राइल आए हैं, सफेद कपड़ों में मलबूस, बाल सब अच्छे साफ सुथरे एकदम आकर बैठे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब, जानू से जानू लगाकर बैठे और सवालात करे, एहसान क्या है, ईमान क्या है, सारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देने लगे। उसके बाद चल दिए, जाने गया। तब तक मालूम नहीं हुआ, किसी को पता भी नहीं चला कि कौन आया है, तब तक अक्कर भी नहीं हुआ, इट डिड नॉट अक्कर टू इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद में जाने के बाद अब तलाश करने लगा, अरे ये कौन आया था, सफर अगर करके आया, वहां का सहरा का सफर है, मिट्टी धूल में अटे हुए कपड़े होना चाहिए था, बाल बिखरे हुए हैरान परेशानी में आना चाहिए था, ये तपती हुई धूप में नहीं, एकदम साफ सुथरे कपड़ों में, बहुत अच्छा मलबूसात में, बहुत अच्छा इसमें आए हैं ना फॉर्म में। तो कैसा, ये कौन है? अच्छा दौड़ाया लोगों को, जाओ देखो इधर उधर तो होगा ना, अभी थोड़ी ही देर हुई है जाकर, कहाँ दूर तो नहीं गया वो, देखो ये हमारे आदमी तो नहीं है, हमारे आदमी हम ना मालूम होती, आता तो करीब आकर बैठता, किसी को नहीं मालूम, ना मालूम सी सूरत है, जान पहचान भी नहीं है। तो जाकर देखे, इधर उधर देखा, नहीं मालूम है। उस दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया, एक बात उनके ख्याल में आ गई कि अच्छा ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। लोगों से फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि तुम सवाल नहीं करते,
یہ کیسا کرنا وہ کیسا کرنا یہ سوال نہیں کر سکتے، دین کے متعلق زیادہ سوالات نہیں ہیں آپ لوگوں کے، تو یہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، کس درجے میں ایمان کامل ہوتا ہے، کس طریقے کی عبادت کو احسان کہا جاتا ہے، یہ سب سکھانے آئے تھے تم میں، کیونکہ تم سوالات نہیں کرتے۔ تو یہ سیمیٹک ریس ہے نا، یہ سوالات نہیں کرتی، کھود خورد نہیں کرتی، ایسا کرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکل ہوتی، یہ چون و چرا کے بغیر سمجھ لیتے تھے۔ یہ منافقین ہیں، یہ جو آریائی ریس ہے، یہ بال کی کھال اتارنے والے، ابھی بھی ان کا رویہ یہی ہے، اور ایسی ہی چال باز قوم ہے، یہ ان کے خون میں ہے۔ نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، یہ کہتے تھے جب ان لوگوں سے ملتے تو، جب عبداللہ ابئی یا یہ شیاطین کسے کہا جا رہا ہے، علماء، یہود کے علماء، ان کو جب کہا جاتا، ان سے جب ان کے خلوت میں ملتے یہ لوگ، تو کیا کہتے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، بس مذاق کر رہے ہیں، ایسا ہی ڈھونگ رچا رہے، ایمان لانے کا ہم ڈھونگ رچا رہے، لبادہ اوڑھ رہے، جھوٹا لبادہ، کوئی صحیح بات نہیں ہے یہ، حقیقتاً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ کہہ رہا ہے اچھا تم مذاق ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ مطلب یہ اس میں نہیں لینا ہے، یہ محاورتاً ہے، یہ چونکہ ہماری زبان جو ہے وہ سمجھنے کے واسطے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کیا مذاق ہے یہ جو سودا ہے نا، دنیا خرید رہے ہیں اور آخرت کو جو برباد کر رہے ہیں، یہ اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ چاہتے نہیں نا، دھوکہ دینا چاہ رہی، اچھائی کی طرف آنا نہیں چاہ رہی، صراط مستقیم پر آنا نہیں چاہ رہی، تو جاؤ طغیانہم، چھوڑ دیا سرکشی میں اللہ نے، یمدہم، یمدو مدہ یمدو، طول دے دینا، رسی دراز کر دینا، اب کسی جانور کو آپ پکڑے ہیں، اس کو وہ بھاگنا چاہتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں، چھوڑ دیتی، لمبا چھوڑ دیتی اسے، بعد میں کبھی کا کھینچتے نا، رسی دراز کر دینا، چھوڑ دینا، جا جا کتنی دور تک جاتا ہے جا بول کو چھوڑ دیتی نا، وہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کرتا جا رہا ہے، جا رہے ہیں یہ اپنی سرکشی میں لمبا لمبا آگے ہی آگے جا رہے ہیں، یمدو بہت آگے جا رہے ہیں، اب یہ کیسا آئیں گے واپس سے، اب ان کی واپسی کی راہ بند ہو گئی، یہ اتنی دور چلے گئے گمراہی میں، اب ان کو راستہ نظر نہیں آتا، اب یہ ٹھکانہ ان کا دوزخ ہی ہے۔ تو یہ مذاق اللہ کا اس سینس میں اللہ بتا رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ مذاق کرے گا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، بہم ان کے ساتھ، کب، آخرت میں یہ جائیں گے جہنم میں، وہ یمدہم انہیں چھوڑ رہا ہے، فی طغیانہم، طغیانی جب طغیانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بند ٹوٹ جاتا ہے، ڈیم ٹوٹ جاتا ہے، پورے حدیں کراس کر کے جو پانی آتا ہے، سیلاب جو بہ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، تباہی کا باعث ہوتا ہے، پورے گھراں برباد ہو جاتی ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، ساری بربادی ہی کا یہ ہوتا ہے یہ معاملہ، تو ان کی بھی بربادی ہے، یہ بھی سرکشی میں کیا ہو گئے ہیں، یہ یاما، یاما، اما سے امیا، عین میم یا، اندھا، یہ اندھا دن جا رہے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں اپنی سرکشی میں، یعنی صحیح راستہ انہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور ان پر ایک جوش طاری ہے، اندھے ہو کر یہ بھٹک رہے ہیں، راہ سے بھٹک گئے ہیں، یہ طغیانی سرکشی میں سارے حدود چھوڑ کر اندھا دھن جا رہے، اردو میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، بڑا ایپٹ ورڈ ہے، اندھا دھن جانا، نہ راستہ دیکھنا، نہ آگے دیکھنا، نہ پیچھے دیکھنا، دائیں بائیں کچھ بھی دیکھنا نہیں، سیدھا سرپٹ جو دوڑے جاتی، اردو میں کہا جاتا ہے نا، ایگزیکٹلی دس دا میننگ، اندھا دھن سرپٹ دوڑے جانا، کس میں، سرکشی میں، آگے ہی آگے یہ اندھوں کی طریقے سے اندھوں کی طرح یہ چلے جا رہے ہیں، اور انہیں اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ گویا کہ مذاق کر رہا ہے، جو یہ لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کی بات کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ وہی روش اختیار کیے ہوئے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اب یہ سواد آیا، یہاں سواد آیا نہیں، اب یہ سواد کا کیا مطلب ہے، مرخص کہتے ہیں اسے، مرخص، یعنی
बात पूरी नहीं हुई है, इबारत बाकी है, आयत अभी बाकी है, बात पूरी नहीं हुई है, लेकिन इस पर अगर पूरा लंबा नहीं चल सकता, सांस टूटती है, तो ये मुकाम ज्यादा बेहतर है कि आप दूसरी जगह से इस मुकाम पर थोड़ा वक्फ कर लें, मुरखस थोड़ा वक्फ कर लें, ये बेहतर है, जायज है, आप ये कर सकते हैं, मुरखस रुखसत है, यहाँ पर आप ठहर सकते बनिस्बत दूसरे मुकाम के, यानी आगे जाको अगर आप ठहरे, फॉर एग्जाम्पल तिजारत हम करें, आपकी सांस रुक गई, आप वहां ठहरे, मतलब क्या होता है, टूटा फूटा हो जाता है। अगर आप यहाँ ठहरे तो इट इज मोर बेटर देन वक्फ एनीवेयर एल्स इन द आया। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ दलालता बिल हुदा, थोड़ा सेंस ले लिया हम, फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। अभी आपको समझ में आ गया, स्वाद, ये मुरखस मीम रा खा स्वाद का शॉर्ट फॉर्म को क्या क्या कहते हैं, मुखफ्फफ, तखफीफ, शॉर्ट, तखफीफ बोले तो हल्का, शॉर्ट, अब ये मुरखस का शॉर्ट फॉर्म है, ये उस जगह आया जाता है जहाँ इबारत लंबी है, मफहूम पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप अगर दूसरे मुकाम पर जाकर थोड़ा आगे जाकर ठहरती तो ठीक नहीं होता, वो मतलब इधर उधर हो जाता है, तो ये मुकाम ज्यादा बेहतर है बनिस्बत दूसरे के कि आप यहाँ थोड़ा सांस ले ले फिर आगे बढ़े, ये है मतलब स्वाद का, मुरखस का शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, उलाइका, यही लोग हैं, अल्लाह कह रहा है जोर दे के, ये बेवकूफ, इनकी मिसाल कैसी है, दलाला, गुमराही खरीद रही ये लोग हिदायत छोड़कर, यही लोग हैं, ये बेवकूफ लोग, इससे पहले कहा ना क्या बेवकूफी कर रहे हैं, यही लोग हैं अल्लजीना, जिन्होंने इश्तरो बोले तो इश्तरा यश्तरी, ट्रांजैक्शन, खरीदो फरोख्त, लेकिन ज्यादातर खरीदने के मफहूम में भी आता है, खरीदने के मफहूम में ही आता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी ट्रांजैक्शन, खरीदने को भी फरोख्त करने को भी सेल एंड बाई दो को भी यूज कर लेते हैं। इसका इस्मुल फाइल होता है मुश्तरी। अब ये मुश्तरी और प्लानेट मुश्तरी जो नाम रखा जाता है, मुश्तरी नाम भी रखा जाता है ना, स्पेलिंग सेम है, आप कंटेक्स्ट पर मालूम कर लेना कि खरीदार कौन है और प्लानेट का नाम कहाँ आ रहा है। खरीदार को भी मुश्तरी कहा जाता है, मीम शीन ता रा या, उसके भी यही स्पेलिंग है, प्लैनेट के भी यही स्पेलिंग है, वो जो सितारा है उसका नाम रखा जाता है ना। जिन्होंने, अल्लजीना, जिन्होंने, इश्तरो, खरीद ली, क्या खरीद ली, दलाला, दलाला, जोल्ला से, जोल्ला जोलाला भी बोल सकते हैं, दलाला भी बोल सकते हैं, आप दुआ दुआत भी बोल सकते हैं, जुआत भी बोल सकते हैं, रमदान भी बोल सकते हैं, रमजान भी बोल सकते हैं, नहीं बोथ आर करेक्ट। गुमराही खरीद ली इन्होंने, देखो इनकी बेवकूफी, अल्लाह कह रहा है बिलहुदा, हिदायत के बदले में गुमराही खरीद ली, परमानेंट खसारा कर लिए, हमेशा का खसारा, हमेशा जहन्नम में तपते रहने का मामला इन्होंने कर लिया, ये है बेवकूफ। फमा रबिहत, बस माँ नाफिया है, नहीं तो नहीं, रबिहत, ये ता तायना तानिस आ रहा है, किस लिए, ये जो सौदा इन्होंने किया है ना, ये मोहन्नस का सीगा है, कोई फायदा ना दिया, किसने ना दिया, तिजारतुहुम, इनकी तिजारत तो है जो है, ये जो सौदा करे ना इन्हों, जलालत, खरीद ली इन्होंने, हिदायत छोड़कर, हिदायत आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तालीमात चल रही, अनवरात तजल्लियात बरसात हो रही है, तालीमात की, अल्लाह की वहदानियत समझ में आ रही है, बिलफेल समझ में आ रही है, बिलखुआ समझ में आ रही है, क्योंकि सामने ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर, इससे फायदा उठाने के बजाय इन्होंने उल्टा सौदा किया है, तो ये तिजारत जो है, ये जो इन्होंने सौदा किया है, इसने इसको कोई, इनको कोई फायदा ना दिया, फमा रबिहत, ये रबा यरबू सूद के वास्ते भी बोलते हैं, लेकिन ये हाँ के साथ जब आता है तो तिजारत का फायदा है जो जायज है, वो रिबा जो है वो सूद का फायदा वो ना जायज है, वो
ये रबीहत, ये फायदा, ये सौदा इनको फायदा ना दिया। तिजारतुहुम, जिन्होंने ये जो तिजारत इन्होंने की, उनकी तिजारत ने उनको कोई फायदा ना दिया। वमा कानू, और ना थे वो, कानू थे, हैं, होंगे, ये सारे इसमें फेले नाकिस है, ये सारे सीगों में यूज होता है, सारे टेंसेस में यूज होता है। मुहतदीन, मुहतद इस्मुल फाइल है, इहतदा यहतदी हिदायत, इहतदा उसने हिदायत पाया, यहतदी वो हिदायत पाएगा या पता है। फिर ये हाल और मुस्तकबल दोनों मिलकर आता है ना, ये ऐसा है अरबी में। वो हाल को ज्यादा उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हाल, अब जो ये मिनट है ना, ये क्या हो गया, गुजर गया, माजी को चले गया ये। अब फिर हमें सिर्फ हाँ मुस्तकबल का ही है, बात मुस्तकबल की ही है। अब ये जो मिनट हुआ माजी को चला गया, तो हाल का कोई ज्यादा तस्वुर उनके पास नहीं है। मुहतदीन, वो हिदायत पाने वाले भी नहीं, वो माँ कानू, और ना थे वो मुहतदीन हिदायत पाने वाले। अब इनको क्या कहते हैं हम उर्दू में, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में अटक गए। अल्लाह भी नहीं मिलता, आखिरत भी इनकी अच्छी नहीं हुई, ना दुनिया ही अच्छी हुई। अभी ऐसा मुनाफिकत करने को एक दूसरे से, इनके पास एक बात इनके पास एक बात, इन्हों खुद कुछ धोखा दे रही, दो मुंहे हो गए, डबल पर्सनैलिटी के हो गए, इनको खुद ही अपनी तमानियत का एहसास नहीं रहता। दिली सेटिस्फेक्शन जो हासिल होता है इंसान को जिंदगी में, एक तमानियत का एहसास, एक सच्चाई में जो तमानियत का एहसास होता है, उससे भी ये हाथ धो गए, आखिरत से भी हाथ धो गए। सबसे ज्यादा बेवकूफ तो यही है। मुहतदीन मालूम हुआ ना, जो हिदायत पर नहीं है। मुहतद, मुहतद हिदायत पर रहने वाला। ये यानून ऐड हो गया तो क्या हुआ, जमा मुजक्कर सालिम का जमा आ गया। मुहतदीन हिदायत पाने वाले, ये हिदायत पाने वाले भी नहीं। हर तरफ से हाथ धो लिया इन्होंने, हर तरफ से ये खसारे ही में ही। हालांकि उनकी दानिश में वो नहीं जानते, वो नहीं जानते कि किस कदर धोखे में पड़ गए हैं, किस कदर इन्होंने खसारे का सौदा कर लिया है, इनको खुद भी उसका इल्म नहीं है, उनके दानिश पे वो भी नहीं आया। एक और मिसाल दे रहा है अल्लाह, इनकी मिसाल कैसी है। मसलुहुम, इनकी मिसाल, हुम जमीर, उनकी मिसाल कैसी है। कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारो, जीम आ गया, जीम आ गया तो क्या, जीम मजूज, मजूज है नहीं, ये वक्फ जायज का, मजूज भी कहती, जायज भी कहती, ये वक्फ जायज है, इसका मुखफ़्फ़फ़ है ये। और इसका मतलब क्या है इसका, यहाँ ठहरना जायज है, यहाँ ठहर सकते। जीम, जीम आया तो ठहर सकते हैं, ठहरना जायज है। अगर आपकी सांस इजाजत दे रही है, आगे बहुत आगे चल सकती, ठीक है चल सकते, आगे बढ़ सकते। सिर्फ मीम पर यह आता है कि जहां आप आगे नहीं जाना, सांस टूटे या ना टूटे खड़ाना जरूरी है, लाजिम का मतलब है वो, मीम लाजिम, एंड में लाजिम आता है ना मीम, वो एक छोड़े तो बाकी का सब ये हल्के ही है। ठहरना जायज है, ना ठहरना बेहतर है, ऐसा है। अब इसमें जायज है। मसलुहुम कमसल लज़ी इस्तौक़दा, इनकी मिसाल कैसी है, उनकी मिसाल कमसली, जैसे मिसाल, अल्लज़ी, इसमें मौसूला वाहिद का सीगा है, जमा मुज़क्कर वाहिद का सीगा है। इसका मुअन्नस लिए तो अल्लती आता है, अल्लती, औरत को बोलना अल्लती। तौखदा, इस्तौखदा, इस्तौखदा यस्तौखदु, ये कौन से बाब से आता है, बाबे इस्तेफाल से आता है, कोई मुश्किल काम सर अंजाम देना। अब ये देखो, ये काफिला इंसानियत, अब ये समझने की बात है कि ये जो काफिला इंसानियत जा रहा है, अब ये हिजाज का ही मामला ले लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना ये है, 2000 ईयर्स शायद, 1200 प्लस 600, 1800, 1912 समथिंग कैलकुलेट करे तो। अब ये 2000 साल का वक्फा हो गया, और वहां तो थोड़ा बहुत था यहूदियों के पास तो पैदर पे
पैगंबर आ रहे थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल जलालत है, कुछ भी कोई पैगंबर नहीं आया, इनको शरीयत से कोई ना वाकफियत नहीं, कोई इनको वहीदानियत का बताने वाला कोई नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई शरीयत नहीं आई, कोई किताब कोई सहीफा नहीं आया इनके पास से। तो इनकी मिसाल कैसी है? एक गुमराही में काफिले इंसानियत जा रहा है, गुमराही में कुछ नहीं नजर आ रहा, अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, अच्छा काम क्या है बुरा। अब ये तमसील है, ये तमसील किसे बोलती है? मिसाल, एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तमसील, तशबीह, ये सब एक ही कबीले के वर्ड्स हैं। ये एक मिसाल दी जा रही है कि ये लोग सब जा रहे हैं, अंधेरा ही अंधेरा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, उस तरीके का अंधेरा है। अब उसमें कोई शख्स, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है इशारा, किसी शख्स ने उस काफिले में से कोई उठा और जुर्रत करके थोड़ी लकड़ियां जमा की और आग जला दिया, आग जला दिया ताकि रोशनी हो जाए। ये कुफ्र के माहौल में ईमान की रोशनी बखेर दिया, ये समझना चाहिए हम। मिसाल ऐसी दी जा रही है कि एक अंधेरा काफिला अंधेरे में जा रहा है और किसी ने उनमें से ही एक शख्स आग जला दिया, इस तौखता, जिसने भड़काई आग, जलाई आग, नौरन आग जलाई। फलम्मा, वापस लम्मा जब, फिर जब अजाअत माहौल हो, अजा बोले तो जिया से, जिया पाशी हो गई, क्या हो गई? रोशनी फैल गई। अब अंगार जली, आग जली तो क्या हुआ? पूरा माहौल गिरदा गिरद कर रोशन हो गया। अब ये मिसाल समझिए कि कुफ्र का अंधेरा था, शिर्क की जलालत थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह की तरफ से तालीमात का नूर बरस रहा है। अब क्या हो गया? माहौल चमक गया, रोशन हो उठा, चमक उठा, पूरा माहौल रोशन हो गया। किसी ने आग जलाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, फिर जब अजाअत रोशन कर दिया माहौल हो, उसके गिर्द के माहौल को, इर्दा गिर्द के माहौल को, उसके अतराफ व अकनाफ सारा माहौल क्या हो गया? रोशन कर दिया। इस आदमी ने रोशन कर दिया जिसने हिम्मत करके लकड़ियां लाई, जलाई, इसने कोई हिम्मत का काम कर दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका इर्दा गिर्द सब इसने क्या किया? रोशन कर दिया। लेकिन हुआ क्या? जिनको नहीं मिलना था हिदायत, उनको नहीं मिली। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। अब अल्लाह को मालूम है कौन सही है, कौन मुनाफिक, कौन ईमान वाला, कौन दिल से ईमान लाया है, किसके दिल में ईमान जागुजी है, और कौन मुनाफिकत का लिबादा ओढ़े हुए है, मालूम है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद माहौल रोशन हो गया, लेकिन क्या हुआ? जहाबा, जहाबा बोले तो जहाबा या सबू, पता है यफ्तहू, ले जाना, जहाबा ले जाना, छीन ली, छीन लिया, ले गया, किसने? अल्लाह ने। बिनूरिहिम, उनकी रोशनी। ये कौन सी रोशनी की बात हो रही है? हमारे अंदर एक रोशनी है, हमारे बाहर एक रोशनी है। ये जो लाइट्स जल रहे हैं, खुमखुमे हैं। अब पहले जमाने में के जो बात हो रही है वो मशाल की है, या खुमखुमे की, या ये चरागों की है, वो बाहर की रोशनी है। अब ये जो अल्लाह ले गया, छीन लिया, क्या? अंदरूनी रोशनी, बातनी रोशनी, जो नूर अल्लाह का हमारे दिलों में है, नूर वहदानियत जो हमारे दिलों में है, हमारा कल्बी नूर। अब एक एग्जांपल लीजिए, अंधे की एग्जांपल लीजिए। सारी दुनिया रोशन है, रात को एक ही अंधेरा होता है, दिन हो गया तो सारी दुनिया रोशन हो जाती है, लेकिन अंधे के वास्ते बदस्तूर अंधेरा है, रात और दिन दो भी एक ही है बेचारे के लिए। उसको नजर नहीं आता, क्यों? उसकी अंदरूनी रोशनी नहीं है, बाहर रोशनी है, सारी दुनिया रोशन है, सब कुछ नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, अंधे को नहीं नजर आता। अब ये क्या हो गए? या महा, जो इससे पहले आया ना, या महा, या आइन मीम हा, या आइन मीम या आया तो उन्हें अंधा, माता जात अंधा पैदा हो गया, उन्हें अंधा ही है, ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड, लिटरली ब्लाइंड, वर्चुअली ब्लाइंड।
अब ये या आइन मीम हाँ आया तो है रोशनी उसकी, दिल का अंधा है वो। अब यही बात यहाँ हो रही है कि उसके दिल में जो रोशनी थी वो अल्लाह ने सल्ब कर ली, वो अल्लाह छीन लिया। और तरह का यत्रुकु छोड़ देना, छोड़ जा, जा पड़ जा, गेट लॉस्ट, छोड़ देती नहीं, वो तरह का होम, और उन्हें छोड़ दिया, फी जुलुमात, अंधेरों में छोड़ दिया। अब क्या होता है उनका हाल, ला युबसिरून, वो नहीं देखते, अब उनको कुछ भी नजर नहीं आता। अब रवा तर्जुमा देखिए, मसलुहुम कमसलिल लजी इस्तौखदा, अब इसे मिलाकर पढ़े तो आप, मसलुहुम कमसलिल लजी इस्तौखदा नारो फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। उनकी मिसाल कैसी दी जा रही है, ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की, और जब उसने सारे माहौल को, सारे इर्द गिर्द को रोशन कर दिया, सब रोशन हो गया, रोशनी से मुनव्वर हो गया, तो अल्लाह ने क्या किया, उनका नूरे बसारत सल्ब कर लिया। नूरे बसारत, आंखों की रोशनी, दिल की रोशनी, ये छीन लिया अल्लाह ने, और उन्हें तरक कर दिया, छोड़ दिया। किस हाल में छोड़ दिया, तारीकियों में उन्हें भटकते हुए छोड़ दिया, उन्हें कुछ नजर नहीं आता। अब तारीकी में आगे ही आगे, फी तुग़यानिहिम यामहून, इससे पहले आया ना, जा रहे हैं वो, तारीकी में जा रहे हैं। सुम्मुन बुकमुन उम्मियुन फहुम ला यरजिऊन, अब इनकी हालत क्या है, सुम्मुन बहरे, असुम कहती बहरे को, जिसे बहरा सुनाई नहीं देता, बुकमुन गूंगा, बातचीत नहीं आती, गूंगा है, बात नहीं कर सकता, उम्मियुन अंधा, फहुम ला यरजिऊन, सो वो नहीं पलटते। अब ये अब नहीं पलटेंगे, इनको वापस आने का अब चांस ही नहीं है। भटक गए वो, उनकी अंदरूनी रोशनी अल्लाह ने सल्ब कर लिया, बातिनी रोशनी, आंखों की, यहाँ बसारत भी कह रहा है, आंखों की रोशनी भी और दिल की रोशनी भी। आंखों की रोशनी है, दूसरी चीजें नजर आती, लेकिन अल्लाह की वहदानियत नजर नहीं आती, और ये जो हुजूर की तालीमात है इसका ये फहम उनको नहीं होता। अब ये रोशनी इनसे सल्ब कर दी गई है, अब ये बहरे भी हो गए, इन्हें कुछ बोले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात इनको, ये आगे आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, कानों में उंगलियां ठोस लेती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात देती हैं तो क्या करती हैं, एक तो ये करते कि गुल मचा देते, शोर और गुल मचाने लग जाते, ताकि किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सुनाई ना दे। और दूसरा क्या करते हैं, अपनी उंगलियां कानों में ठोस लेते हैं, हमें नहीं सुनना है, आपकी बात हमारे ऊपर नहीं चाहिए, आपकी बात हम नहीं सुनना चाहते। तो ये बहरे हैं, गूंगे हैं, बात भी नहीं कर सकते, अंधे भी हैं, इनको कोई दिखाई भी नहीं देता। अब ये वापस आने वाले नहीं, बस गए ये लोग। औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रातुन व बर्क़, अब यहाँ भी जायज का आया, यहाँ ठहरना जायज है। अब ये एक और मिसाल दे रहा है अल्लाह, फिर उनकी मिसाल क्या समझना, आसमान से जोर की बारिश हो रही है, जोर की एक बारिश की मिसाल दे रहा है अल्लाह। सय्यब किसे बोलती, बारिश की दुआ मालूम है, बारिश जोर की पड़ रही तो क्या दुआ करना, अल्लाह ये बारिश नफा बख्श कर दे, इसके शर से बचा, इसकी तबाही से बचा, तो उसकी दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा सय्यबुन नाफियन, नफा बख्श कर दे ये बारिश, मूसलाधार बारिश, ज्यादा बारिश जो होती है। बारिश को भी कई वर्ड है, जोर की बारिश, हल्की बारिश, फुआर जिसे कहते हम, औ कसय्यिबिन, या जैसे बारिश हो रही हो, फीही ज़ुलुमातुन मिनस समाई, आसमान से जोरदार बारिश हो रही है। ये किसे तशबीह दे रहा है अल्लाह, ये जो तालीमात पे दर पे आ रही, जिब्राइल ले लेकर उतर रहे ना, पे दर पे तालीमात आ रही। अब मदनी दौर में तो बहुत ज्यादा, 2/3 कुरान वहां नाजिल हो गया था, कहाँ, मक्के में 2/3 नाजिल हो गया था। अब ये तरतीबी नुज़ूल के एतबार से देखें तो आप, बकरा कब नाजिल हुआ, बाद में नाजिल हुआ, मदनी दौर का नहीं, बाद में। नुज़ूली एतबार अलग है और मुसहफ में जो तरतीब है वो अलग है।
अब ये इल्हाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में ही, हयात तैयबा में ही ये तरतीब दे चुके। अब ये अल्लाह के इल्हाम ही से हुआ होगा ना। पहले जो आए वो बाद में आकर हैं, और जो बाद में आए वो पहले आकर हैं। ये तरतीबी नुज़ूल। पहले दूसरे बहुत आए, बकरा बाद में आया। अहकामात हैं इसमें, मक्की दौर में अहकामात नाजिल नहीं हुए। ना शराब का ममानियत का हुक्म आया, ना रिबा का ममानियत का हुक्म आया। ये सभी सन 7 हिजरी के बाद की वाक़ियात हैं ये। लेकिन तरतीब में क्या हुआ, पहले ये ला लिया गया है। तो ये औ कसय्यिबिन, या जैसे बारिश हो रही हो, आसमान से जोरदार बारिश हो रही है। फीही ज़ुलुमातुन व रादुन व बर्क़। फीही, इसमें, ज़ुलुमात, अंधेरे हों। अब जोरदार बारिश हुई तो क्या होता है, बारिश में एक तो काले काले बादल छा जाती और बहुत ही अंधेरे के जैसा हो जाता है। अगर 3 बजे की धूप भी पड़ रही हो, बादल छा गया तो क्या होता है, जैसे लगता है कि मगरिब के करीब आ गया टाइम। अब ऐसा ही है, भी अंधेरा छा गया है, बदलियों का अंधेरा छा गया है। अब इसमें क्या होता है, जुल्मत हो गया, अंधेरा हो गया, बदली का अंधेरा हो गया। लेकिन कड़क हो रही है, जोरदार कड़क हो रही है, बिजलियां चमक रही हैं, गरज हो रही है। अब इनका मामला क्या है, अल्लाह बता रहा है, यजअलूना असाबियहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत। ये लोग या यजअलूना कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं। अब ये बनाने का मतलब नहीं आता यहाँ पर, क्या मतलब आता है, डालना, उंगलियां अपने कानों में डाल रहे हैं। ज़ुलुमातुन व रादुन व बर्क़ यजअलूना असाबियहुम फी आज़ानिहिम। अच्छा, उससे पहले का लीजिए, मिनस समाई, आसमान से जो बरसात हो रही है लगातार मूसलाधार। फी ही, उसमें, जुल्मात, जुल्मात, अंधेरे हो गए हैं, बदलियों का, ये बादलों का अंधेरा छा गया है। वो रात, रात किसे बोलते हैं, गरज को, गरज, एकदम जोर की गरज। वो बर्फ, बर्फ बिजली, बिजली से क्या होता है, रोशनी हो जाती है। रात से क्या होता है, जोर की आवाज, आवाज आई तो क्या, परेशान। कभी कभी इतनी जोर की आवाज आती है कि एकदम दिल धड़कने लग जाता है, जोरदार आवाज कभी कभी हो जाती है, बहुत जोरदार आवाज आती है। वो रातों, वो बर्फ, बहुत जोर की कड़क गरज, और बर्फ, बिजली। यह जलूना, वो बना लेते हैं। अब यहाँ क्या लेना, वो ठोस लेते हैं, उंगलियां, असाबिया हूं, उंगलियां, असाबी, उंगलियां, असाबिया, हुम जमीर है। ये अपनी उंगलियों को अपने कानों में ठोंस लेते हैं। फी आजानिहिम, आजान उज़न की जमा, ये हिम जमीर है, फी की वजह से मजरूर हुआ, वरना हुम आना चाहिए था। फी आ गया, हरफे जर आ गया, आजानिहिम, अपने कानों में ये वो जोर से उंगलियां ठोस लेते हैं। मिनस सवाइखी, सवाइख किसे बोलते हैं, साइखा, बिजली, कड़क। काहे को इन्हों कानों में उंगलियां डाल ले रही, काहे को जरूरत पड़ी इनको, कड़क के सबब। अब ये तशबीह दी जा रही है, तशबीह को ख्याल रखिए, तशबीह किससे है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। ये नहीं सुनना, ये नहीं सुनना चाहते। ये ऐसा लग रहा है इनको, कड़क हो रही है, बिजली हो रही है, जोरदार बिजली हो रही है, इतना गिरा गुजर रहा है इनके कानों पर, इनकी समाअत पर। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अल्लाह की वहदानियत की बातें ऐसा लग रही है जैसा इन पर बिजली गिर रही है, बिजली टूट रही है, उंगलियां ठोस रहे हैं। हसर अल मौत, हसरा बोले तो खौफ, मौत के डर से ऐसी आवाजें आ रही है, ऐसे तालीमात है, गोया के मौत का खतरा मंडरा रहा है इनके ऊपर, मौत का डर लग रहा है। क्या डर था, छोटे छोटे जो अहकाम आते थे, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सबसे अच्छी बातें करो, कोई गलत काम ना करो, किसी को धोखा ना करो, वादा खिलाफी ना करो, ये सारी ठीक है भाई, ये थोड़े थोड़े ये हल्के हल्के इकदाम, ये जो अहकाम है, ओके, वी कैन एक्सेप्ट इट, वी कैन फॉलो इट। अब दूसरे जो आ रही, अब आ गया खिताल की बात आ गई, सूरह मोहम्मद नाजिल हो गया। इससे पहले सूरह मोहम्मद नाजिल होकर है, तरतीब में नहीं है, तरतीब में बकरा पहले आया, इससे पहले सूरह मोहम्मद है, नुजूल में है, तरतीब में नहीं है। 2/3 कुरान आ गया ऑलरेडी मक्की में। तो उसमें क्या हो गया, खिताल की बात आई,
قتال کیا؟ جنگ و جدل کرو. اب غالب کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو غالب کرنے, غلبہ دینے کے لیے اسلام کو کیا کرنا ہے؟ جنگ کرنا ہے, اب قتال کرنا ہے. اب یہ احکامات آ گئے. اب جنگ کے واسطے پیسہ بھی ہونا, تمہاری جان بھی ہونا. کون جنگ کرنا؟ آنا کوئی میدان ہے, مرد میدان آنا ہے نا, جنگ میں آنا اور حصہ لینا اور پیسہ بھی خرچ کرنا. تو یہ سارے بڑے بڑے جو احکامات آتے اس میں کیا ہوتا, ان کو ٹھٹک کر کھڑ جاتے. یہ بہت گراں گزرتے تھے, یہ تعلیمات انہوں برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو کیا کرتے, اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے اور ان کو موت کا ڈر, اپنے مفادات, پیسے خرچ کرنا, جیب خالی ہو جاتی ہے, اپنے جان کو ہتھیلی میں رکھ کر جانا, سر سے کفن باندھ کر نکلنا, یہ ساری کیا ہے؟ یہ بہت گراں چیزیں, ان کی سماعت پر گراں, ان کے جان پر گراں, ان کے جیب پر گراں. ساری بہت ہارڈ احکامات جو ہیں. یہ کیا دے رہا ہے اللہ اس سے؟ یہ کڑک ہے, یہ بجلی ہے, یہ جو ان پر گر رہی ہے, اس طریقے کی ان پر اس کا اثر ہو رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ گھیرے ہوئے ہے. ان کا حال کیا ہے, کیسا کر رہی, کیا یہ گزر رہا ہے, کیسے ان کے کیفیات ہیں, یہ سارا اللہ کے علم میں ہے. اس کا روان ترجمہ یوں ہوگا کہ ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے, بہت زور, اور کڑاکے کی بجلی, کڑاکا برق بجلی, اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اندھیری گھٹا چھا گئی ہے, ایک دم اندھیرا چھا گیا ہے, اور کڑک چمک, یہ ساری چیزیں ان کے اوپر بڑا ڈراؤنا سا افیکٹ کر رہی. بجلی کے کڑاکے سن کر یہ کیا کر رہی ہیں, اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. لیکن یہ سارا حال اللہ کو معلوم ہے, یہ کس سے بچنا چاہ رہی, کیا چیز ان کے اوپر گرا گزری ہے, اللہ کی وحدانیت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اس سے بھاگ رہی نا. اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اللہ سب کچھ جان رہا ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.